So let's just start. Not this one. Yeah, set. Let's start set. Okay. So we did started dictionary. Dictionary is simple. सभी का हो गया? All of you. So let's go for set. So even set is also very simple. ठीक है. Set समझते हो क्या होता है? Set theory पढ़िए मैथ में. 11 में पढ़ी होगी like curly bracket है ना. So see, let's talk about a little bit about set first. अच्छा एक मिनट करता हूँ. See this. Suppose you want to build a set. ठीक है. Just write x is equal to दो curly bracket and give your data. Like I'm suppose I have a 10, maybe 20, maybe 30, 32, 40. ठीक है. The data. So if I run it, ठीक है. तो ये basically set है. अगर मैं इसका type check करूँ, just check a type here. So you will find this set. ठीक है. So set means curly bracket. इसके बहुत सारे फायदे होंगे. We will see that. But right now see, so this is basically set. Whenever you want to define a set, write a curly bracket, give you data. Okay. If you want to print this, just write print x. Just write print x. You will find your this data. This is basically set है ना? Clear है? अब देखो इसका advantage देखो. Just see this. Just let me build another set. Suppose I am making y is equal to a curly bracket. And let's put some data. Suppose I put 10, 10, 20, 22, 32, maybe 40, 50, 1, 2, 3, and then again writing 10, 20, 22, 32, 40, 50 है ना. और क्या है 122 है. Sorry 50. Correct. Done. Now let's run it. So we put this data into this. Now let's run it. Y. See, ध्यान से देखो आउटपुट में हमने डेटा दो बार इंटर करा है ना, बट इट ओनली वन टाइम. Getting your point? So this is basically important in set. If you enter, duplicate allowed नहीं है. Correct. Duplicate allowed नहीं है ना. So due to this, sometimes it's very helpful. See, suppose this is a data. This is a list है ना, डेली लिस्ट. एंड सपोज आई वांट टू नो कि इसमें कितने डेटा जो है वो यूनिक है. ऑलराइट. यूनिक समझते हो ना, मतलब रिपीटेड नहीं है. सो व्हाट आई कैन डू, आई जस्ट कन्वर्ट दिस लिस्ट टू सेट. ये लिस्ट है ना, ये लिस्ट है ना, स्क्वायर ब्रैकेट इज ऑलवेज लिस्ट ना. जस्ट कन्वर्ट इनटू सेट. राइट सेट एक्स पास द एस. नाउ दिस बिकम सेट. अब देखो आ गया यूनिक डेटा. नाउ यू कैन कन्वर्ट इनटू द अगेन लिस्ट. So it's very simple. We can always convert between two. Na? List to tuple to set. Whenever you have a set, like see this. Conversion is very simple. देखो यहाँ पे एक मैं set, यहाँ पे मैं set बनाता हूँ. See, I have a set. I have some data 1, 2, 3, 4, 5, maybe 10, maybe 20, maybe 22. This is set, and I want to convert into list. Just write x is equal to list. Pass this x. Sorry. List. Make it x. Now run it. Find this, become list. So we are always able to create this. We are always able to convert set to list, list to set, this everything. It's not a big deal. See this. This is a your curly bracket. So set, convert list, list. ठीक है. Suppose I want to again convert into the set. अब ये x list में आ चुका है. Now if I want to again convert this list into set, just write x is equal to set. So conversion of this type is very simple. Yeah, very simple. The side is converted. Got it? तो बात समझ में आ गई ना. वो नहीं लेगा एक भी बार, सेट नहीं लेगा, लिस्ट तो लेगा ना. लिस्ट में तो कभी वैल्यू डाल सकते, डुप्लीकेट डाल सकते हैं. सेट में नहीं लेगा, सेट में लेगा. ठीक है. ठीक है. So this is a very simple set like ABC. So string. देखो यहाँ पे ये हो गया. वेरी सिंपल इस एग्जाम्पल ओनली. सो
इस एग्जाम्पल है, छोड़िए ये सब हो गया। हाँ ठीक, सी लेट्स सी अनदर, दिस इज सेट। अब थोड़ी प्रॉपर्टी देखते हैं सेट की। सी दिस इज एक्स इज 2 3 4 5 7 है, डेटा है। आज देखो यहाँ पे मैं सपोज इसके अंदर आई वांट टू अपेंड वन डेटा, अपेंड होता है लिस्ट में जो अपेंड होता है। सो आई वांट टू अपेंड हियर 120, जैसे एक्स डॉट ऐड 120, हाँ देखो यहाँ पे ऐड हो गया, है ना। सेट में कैसे, डिक्शनरी में कैसे करते हैं, अपडेट करते हैं। तो क्या, नहीं देखो सेट के अंदर, अच्छा डिक्शनरी के अंदर, डिक्शनरी के अंदर डिफाइन कर सकते हैं, एक एक करके लूप चला दो, वो लास्ट में जाएगा। पहले कैसे आएगा, अच्छा अपडेट कर रहे हो तो अपडेट इज एक डिक्शनरी या दूसरी एक डिक्शनरी को डालना। तुम भूल रहे हो, एक डिक्शनरी के अंदर दूसरे डिक्शनरी को डालना। फिर से बोलो क्या करो, मैं यहाँ पर दो डिक्शनरी लिखूं, ठीक है। ये मान लो एक डिक्शनरी है एम, इसके अंदर क्या है, नेम है और मे बी सम नेम है और एक एज भी है, ठीक है। यहाँ नेम है, ठीक है। अब क्या करें, एक और डिक्शनरी ले, एक एन एक डिक्शनरी ले, हाँ हाँ, कोई ऐड करनी है। मान लो मैं यहाँ पे डालता हूँ नेम हो गया, एज हो गया, मे बी सैलरी, सैलरी इज मे बी 20,000। चेक दिस, आ तो क्या लास्ट में, अपडेट ऐसे थोड़े करते हैं, अपडेट के लिए डिक्शनरी अलग दिखाओ। हम्म, नहीं कुछ और बोल रहा है, रुको कुछ और बोल रहा है, अपडेट। डिक्शनरी बनाई है ना, तो वही तो मैं उससे कह रहा था, तो वो अपडेट और उसको पास करो, ऑटोमेटिकली उसके अंदर आ जाएगा। तो वो अपेंड नहीं है ना वो, लाओ दिखाओ इधर, तो उससे क्या होगा, व्हाट इज एक्स, एक्स इज ऑलरेडी डिक्शनरी मैन, एक्स भी तो डिक्शनरी होना चाहिए ना, वाई भी डिक्शनरी है, एक्स भी डिक्शनरी है, वाई भी डिक्शनरी है, और ये तुम, हाँ तो वो थोड़े अपेंड है। अब मैंने कल बताया था ना डेटा कैसे एंटर करना, इजी तरीका, बॉक्स बना करके डालते जाओ वैल्यू। अरे यहाँ भी लिस्ट ये है ना, समझ गया ना, लिस्ट यहाँ पे कहाँ पे है, स्क्वायर ब्रैकेट है, ठीक है। डन, और लिस्ट के अंदर कैसे अपेंड करते हैं, डॉट अपेंड, इसलिए डॉट अपेंड ना, लिस्ट के अंदर तो सीधे अपेंड हो जाएगा, तो भूल जाते हो बहुत तेजी से, कोई बात नहीं, धीरे धीरे हो जाएगा। सो कहने का मतलब ये है कि लिस्ट के अंदर जो होता है वो क्या होता है, अपेंड होता है, और तुम्हारे इसके अंदर तो बहुत आसान है, सेट के अंदर तो है ना, गिव दैट इंडेक्स एंड गिव द वैल्यू, ऑटोमेटिक अपेंड हो जाएगा। और तुम्हारा सेट के अंदर क्या है, क्या कुछ सेट के अंदर अभी बताया ना, ऐड करना है, इंस्टेड ऑफ एडिंग सिंगल डेटा वी ऐड अ लिस्ट सेट ऑफ डेटा विल अपडेट वर्क। तो अपडेट में तो जितना बड़ा डिक्शनरी उतना वर्क करेगा, क्यों नहीं करेगा, अपडेट का तो अभी तुम दिखा रहे, तुम्हारे पास 3 डेटा है ना उसके अंदर, हाँ तो उससे क्या बिल्कुल वर्क करेगा बिल्कुल, ठीक है, ऐसा कुछ भी नहीं है। कहाँ गया यार ये, हम क्या पढ़ा, हाँ सेट, अच्छा सेट के अंदर एक और सेट डालना चाहते हो, हाँ उसमें भी हो जाएगा, हाँ सेट में भी हो जाएगा, सेट में भी होगा, खूब आराम से होगा। लेकिन एक ही डेटा भी करना हो सकता है ना, हाँ डेटा ही कर रहे हो, सेट में भी हो जाएगा। एक मिनट यार ना, ठीक है डन। तो वी कैन ऐड ना लाइक एक्स 120, सो दिस इज वेरी सिंपल। लेकिन देखो यहाँ पर अगर मैं दोबारा ऐड करूंगा तो ये दोबारा नहीं होगा, 120 रहेगा, क्योंकि डुप्लीकेट अलाउ नहीं करता ना, अगर स्टेट होता तो कर लेता, ठीक है। देखो यहाँ पर ये भी है, ऐड कर सकते हैं, ठीक है, नॉर्मल सेट। सो वी आर वर्किंग ना वेरी सिंपल, वी आर एबल टू डू दिस, है ना।
अच्छा देखो, ये कोई जरूरी नहीं है सेट में इंडेक्स नॉट वर्किंग, ये कोई जरूरी नहीं कि पहली बार देखो यहाँ पर ऐड किया 11 आगे आ गया, आगे पीछे गेम सेट में नहीं होता, ठीक है, सेट में कहीं भी डेटा हो सकता है। इवन यू पुट सम डेटा ना, प्रिंट में भी कुछ आगे हो जाएगा कुछ पीछे हो जाएगा, ठीक है। तो सेट में इंडेक्सिंग नहीं होती है। अगर तुम देखो यहाँ पे, जैसे मैं तुम्हें दिखाता हूँ, एक यहाँ पे जैसे हमारा डिक्शनरी सेट था ना, जैसे ये हमारा सेट है। अब देखो मैं अगर चाहूँ, मैं कहूँ कि एक्स ऑफ जीरो पर कौन सा डेटा है, एक्स ऑफ जीरो पर कौन सा डेटा है, 2 है, नहीं है, देखो इधर एरर रहा ना, क्योंकि इंडेक्सिंग अलाउ नहीं है सेट के अंदर, ठीक है। वी डोंट नो कि कौन सा कहाँ पड़ा हुआ है, पढ़ना ही नहीं है, क्यों करना है, मैं काम ही नहीं इसको ये करना है, जबरदस्ती, जबरदस्ती है। अरे भाई लिस्ट में कन्वर्ट कर लो, करना है तो, है ना, अगर वैसा काम करना है तो। सबके अपना अधिकार है ना, कि मोदी जी से कहो कि जो राष्ट्रपति का अधिकार है तुम भी वही काम करो, सबका अपना अपना है ना भाई, ठीक है, तभी तो अलग है। नहीं तो अगर वही सारा काम करना तो फिर इसको अलग करने की लिस्ट ही पे मजा लो ना फिर, है कि नहीं। एनीवे सो सिंपल। सो एक्चुअली बट हाँ, टपल अभी टपल पढ़ा नहीं इसलिए छोड़ दो इसको। सो दिस इज सेट 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 सेट, या देखो अपडेट, सी दिस अपडेट बोल रहे थे ना, देखो यहाँ पे कौन अभी, अच्छा ध्रुव बोल रहा था, देखो ध्रुव, दिस इज अ सेट, दिस इज योर डिक्शनरी, सॉरी नॉट डिक्शनरी, क्या बोलते हैं इसको, सेट, एंड यू आर अपडेटिंग द लिस्ट इनटू दैट डिक्शनरी, सी दिस, देखो ये इसके अंदर आ गया, ये पूरा पूरा लिस्ट इसके अंदर आ गया, राइट अपडेट, ठीक है, डन, क्लियर, आसान है ना, नहीं समझ में आ रहा क्या तुमको, क्या नहीं समझ में आ रहा बताओ, क्या चीज एप्पल में कंफ्यूजन है, हाँ नाम बदलो यार, इसका नाम लिखो एक्स, ठीक है, ये प्रिंट किया एक्स, ठीक है, एक्स में अपडेट किया, प्रिंट किया एक्स को, अब मजा है। ये एक सेक्ट है जिसमें एप्पल बनाना और चेरी है, उसमें हमने अपडेट किया ऑरेंज मैंगो और ग्रैप्स को, तो कम हियर गॉट इट, दिक्कत, दिस सेट नाम दिए थे भाई, है ना, दे सकते हैं ना नाम तो कुछ भी, वेरिएबल नेम इज एनीथिंग, लेंथ ऑलरेडी वी नो दैट लेंथ ना, सर ऑन इट लेंथ, रिमूव, है ना, वी कैन डू रिमूव, या रिमूव का डिक्शनरी में कैसे रिमूव होता है गेट किया, पॉप करेंगे तो रिमूव हो जाएगा ना, ठीक है, और कोई तरीका बताया था क्या, है डिलीट ही बताया था कदो, है ना, डिलीट आईडी डाल दो डिलीट हो जाएगा, कोई बात नहीं, कोई बात टेंशन, हाँ हाँ वही तो कह रहा हूँ, डिक्शनरी के अंदर ही, वो क्या था, वो डिलीट थोड़ा था, उसमें क्या करते हैं, रीसेट है, क्या होता है, पॉप से तो एक एक बाहर निकलेगा, वो जो कुछ रहा है वो कुछ और कह रहा है, क्लीन होता है वो, क्लियर, हाँ, और डिक्शनरी क्लियर हो जाता है, देखा मुझे भी नहीं याद है, वो याद वाद नहीं हो सकता, ठीक है, लेकिन इसे तुम लोगों से कहा था बना के भेजा नहीं किसी ने ना, एक से तुमने, हाँ एक दो लोगों ने बस भेजा है, बाकी लोग पूरे मौज में है ना। देखो ये सब चीज़ें तुम्हें पता नहीं है, बाद में समझ में आएगा, जब मेरे पास कुछ आता है ना, किसी को रेफर करना है, तो मेरे ध्यान में रहता है कौन लड़का ये सब किया था, मेरे को क्या पता तुम में से बेटर कौन है, जब मैं देखो मैं जब सबको पढ़ा रहा हूँ तो मेरे से सबको बराबर लेवल है ना, मुझे क्या पता तुम लोगों से बेटर कौन है, कोई यहाँ पे, मैं एग्जाम थोड़ा ना, यूनिवर्सिटी एग्जाम चल रहा है चलो यहाँ पे बेटर है ना, टेस्ट में वही क्वेश्चन है जो तुम ऑलरेडी कर चुके हो, तो उससे पता चलता नहीं कौन बेटर है, तो ये जो चीज़ें बोलता हूँ ना उसी से मुझे लगता है कि अच्छा ये स्टूडेंट बेटर है, ठीक है। तो जब कहीं रेफर करना होता है ना मुझे, तो मैं उसी को रेफर करता हूँ जो इस सब चीज़ों को फॉलो करता है, क्योंकि जॉब इज़ नॉट अबाउट नो बीइंग इंटेलिजेंस, जॉब जो नौकरी होती है ना केवल इंटेलिजेंस होने से नहीं होती है, उसके अंदर एक दूसरी चीज़ होती है, उसे बोलते हैं ना कि आप कितने पंचुअल हो, मतलब डिसिप्लिन बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सो और वो रहता है ना, तो वहाँ पर रेफरेंस बहुत मजबूत होता है, जैसे मेरे जो स्टूडेंट जहाँ भी काम कर रहे हैं ना, अगर उनके थ्रू मेरे पास आता रहता है कि सर हमारे यहाँ पे ये वैकेंसी है, और वो कराते हैं, क्योंकि वो जहाँ जा रहे हैं मैं उन्हीं लोगों को भेजता हूँ जो डिसिप्लिन है, और तुम अगर थोड़ा सा कम भी जानते रहोगे ना, अगर डिसिप्लिन रहोगे तो जान भी जाओगे, और उस जो मैनेजर होता है ना वो खुश रहता है ऐसे लोगों से, मैनेजर खुश रहे या ना रहे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, मैनेजर से क्या मतलब है, कहने का मतलब है डिसिप्लिन का मतलब ये होता है कि यू आर डूइंग योर जॉब एट टाइम, ठीक है, समझ रहे हो ना,
बस इतनी सी बात है, चलो कोई बात नहीं। तो रिमूव, यहाँ पे आ गया रिमूव, वी कैन रिमूव दिस ना, ठीक है। एंड डिक्शनरी में यू कैन डिलीट दिस, डिलीट आईडी पॉप ऑल्सो बट रिमूव इट। सो ऑलवेज रिमेंबर 2-3 थिंग्स, ज़्यादा कुछ याद आने की जरूरत नहीं है। लिस्ट है, अपेंड करना है, डिक्शन ये तुम्हारा क्या है, सेट है, ऐड करना है, वहाँ पे बॉक्स लगाओ डाल दो, किसमें, डिक्शनरी के अंदर। डिलीट करना है, डिक्शनरी में डिलीट है, लिस्ट अभी पढ़ाया नहीं, आ रहा हूँ वहाँ पे भी। और ये तुम्हारे सीट में क्या है, रिमूव है, गॉट इट, ठीक है। ऑलवेज रिमेंबर दिस, बस ज़्यादा और तुम्हें ये देखो यहाँ पे से ना रिमूव, डिस्कार्ड, यहाँ भी पॉप है, देखो 2 3 4 5 है, अगेन यू कैन पॉप दिस, 5 को बाहर निकाल सकते हैं, ठीक है। अच्छा एक चीज़ देखो यहाँ पे, सी दिस, रन इट। अब मैं ना एक बार और पॉप यूज करता हूँ यहाँ पे, ए डॉट पॉप। सो 4 देखो लाइन से निकल रहा है ना 4, हाँ वही तो कह रहा हूँ, ध्यान से देखो ना, निकल गया, बट ये कोई ज़रूरी नहीं है ना, हो रहा है ठीक है, कभी ऊपर नीचे, इंडेक्सिंग कोई रिक्वायर्ड नहीं है, ठीक है। मतलब ऑलवेज रिमेंबर सेट मतलब नो इंडेक्सिंग से कोई तुम ये नहीं कर सकते हो कि इस पोजीशन पे है तो इसी पोजीशन पे है, ठीक है, इसको ध्यान मत रखना, गॉट इट, ठीक है। एनीवे, सो एनीवे वी आर एबल टू दिस, पॉप हमें पता चल गया, पॉप तो वहाँ भी है ना, वहाँ भी पॉप है ना, किसमें, डिक्शनरी में भी, बट रट्टा नहीं मारना है ना, कि याद नहीं करना अपने को बस पता होना चाहिए 2 चीज़, अपेंड कैसे करते हैं। ऐसे जनरली ना ये सब काम हम लिस्ट में कन्वर्ट कर लेते हैं, अगर तुम्हें नहीं याद आ रहा है फॉर्मूला, मान लो भूल गए, ध्यान ही नहीं आ रहा है, तो कन्वर्ट इनटू लिस्ट, डू ऑल द थिंग्स एंड देन अगेन सेंड इट इनटू सेट, है ना, otherwise you can do this. Anyway, see this is x and this is y, this is x and y, both are set. Do you know what is subset? अब देखो ये इंपॉर्टेंट है, ये only we can do in set ना। सबसेट समझते हो, सबसेट मतलब क्या होता है, डू नो एनीथिंग विद सबसेट, व्हाट इज सबसेट। देखो पढ़ा होगा डिक्शनरी सेट थ्योरी में 11th 12th मैथ में, भुला गए होगे ना पूरा। देखो मैं कहूँगा यूपी इट्स सबसेट ऑफ इंडिया, ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ, यूपी इंडिया के अंदर है ना। जैसे देखो यहाँ पर एक्स है और वाई है, देखो ए बी सी इज देयर ना इन जेड इन वाई, सो इफ आई राइटिंग एक्स इज सबसेट ऑफ वाई, इट्स प्रिंटिंग ट्रू, आर यू पॉइंट और नॉट, क्लियर डन। सो समटाइम इट्स ट्रू, बात समझ में आ रही नहीं आ रही, किसी को दिक्कत है ऑनलाइन में। सबसेट क्या होता है, सबसेट जैसे होता है ना, ऐसे होता है यूपी इज सबसेट ऑफ इंडिया, है ना। लेकिन ऐसा क्या बोल सकते हैं, श्रीलंका इज सबसेट ऑफ इंडिया, बोल सकते हैं क्या, नहीं बोल सकते ना, ठीक है, क्योंकि श्रीलंका इज नॉट पार्ट ऑफ इंडिया, है ना। मे बी समटाइम्स सम कुछ चीजें पार्ट हो सकती है, कुछ चीजें नहीं हो सकती। जैसे मैं बोलूँ, ध्यान से देखो, नोएडा इज पार्ट ऑफ दिल्ली, सर नोएडा इज सबसेट ऑफ दिल्ली, नहीं गलत है, नहीं है ना, बट नोएडा इज सबसेट ऑफ एनसीआर, है ना, सही है ना। तो नोएडा आ रहा है उसके अंदर, है ना, तो ये ध्यान रखना है, ठीक है। लेकिन जैसे यमुना रिवर है, यमुना रिवर देख रहे हो, यमुना देखा है, यमुना रिवर, कैन वी से यमुना इज सबसेट ऑफ दिल्ली, कैन वी से ट्रू होगा, यमुना दिल्ली में हो गुजरती है ना। अच्छा गंगा यूपी में हो गुजरती है, हाँ गंगा गुजरती है ना, कैन वी से गंगा इज सबसेट ऑफ यूपी, कर सकते हैं, नहीं कर सकते, तो पूरा गंगा नहीं है ना, गंगा पश्चिम बंगाल बिहार में जाती है, पश्चिम बंगाल से होके वो वे ऑफ बंगाल में गिरती है ना, उत्तराखंड कहाँ से निकलती है, उत्तराखंड से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है ना, तो पूरा यूपी में थोड़ा ना, यूपी में से होते हुए बिहार में चली जाती है ना, तो वी कांट से कि गंगा इज सबसेट ऑफ यूपी, है ना। वो चीज़ सबसेट तभी होगा जब पूरा का पूरा उसके अंदर हो। अब इसका फायदा देखो, सपोज यू आर वर्किंग ऑन अ प्रोजेक्ट, तुम्हारे पास कुछ डेटा है, यू वांट टू चेक दिस डेटा इज अवेलेबल इन दिस डेटा और नॉट, पूरा का पूरा डेटा, जस्ट चेक सबसेट, otherwise you have to write a loop, we start comparing this all the data available and this will take lots of time, है ना, काफी टाइम लेगा ना, directly check whether it's this subset or not, if it's subset all data is available in this, आ रहा समझ में नहीं आ रहा है, क्लियर। so set is very very important, sometimes very very important, it will reduce your work ना, जो तुम्हारे
यही तो फायदा है पाइथन का, है ना। एक दो दिन में हम लोग उप शुरू करेंगे तो विल डिस्कस कि क्या मज़ा है पाइथन में और क्यों ये मज़ेदार है, इवन जावा से बेटर। मतलब मैं नहीं सकता बेटर, तो मैं क्लेम नहीं कर सकता, बट समटाइम्स यू फील कि हाँ बेटर तो है ना। सो विल सी दैट वेरी सून। एनीवे, कल से स्टार्ट करेंगे अपन उप्स ना। देखो इस बहुत सिंपल है, तो कोई दिक्कत इसमें? एनीवन? कहाँ गए? डॉक्यूमेंट सेट। सो इसे सबसेट है ना, सबसेट, ठीक है। लेट्स चेंज दिस, लेट्स चेंज दिस। सपोज आई एम ट्राइंग टू डू, देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ ना कि मैं एक्स में कुछ ऐसा डालता हूँ जो वाई में नहीं है। जैसे मैं यहाँ पे डाल देता हूँ कि आई, आई वाई में नहीं है, दिस नाउ चेक सही फॉल्स। आई इज नॉट इन वाई ना, ए बी सी तो है लेकिन आई पूरा नहीं है ना, वही बात हो गंगा वाली, है ना। तो इस दस इज नॉट सबसेट। व्हाट यू वांट और नॉट क्लियर, ठीक है। अच्छा, डिसजॉइंट पता है क्या होता है? डिसजॉइंट है, पहले देखो इस पर ना ज्वाइंट होगा मेरे ख्याल से, रुक जाओ, नहीं है। एक चीज देखो यहाँ पे लिखा है एप्पल, ठीक है। एप्पल इज नॉट हियर, बनाना, चेरी एंड फेसबुक, फेसबुक इज देयर, माइक्रोसॉफ्ट इज ऑल्सो नॉट देयर, बट गूगल इज देयर ना। केवल एक ही इसमें वो है ना तुम्हारा मैच कर ना, बट हियर यू कैन सी, हाँ ठीक है। यहाँ पे देखो, यहाँ पे कोई मैच कर रहा है? नहीं मैच कर रहा ना। एप्पल, बनाना, चेरी, गूगल, माइक्रोसॉफ्ट, पिक्सल, कोई मैच नहीं कर रहा है। सो डिसजॉइंट मीन्स देयर हैज टू बी नो कॉमन, ठीक है। कोई कॉमन नहीं है उसको बोलते हैं डिसजॉइंट, ठीक है। जैसे आई एम सेइंग यूपी इज डिसजॉइंट ऑफ बंगाल, यूपी इज डिसजॉइंट ऑफ बंगाल, ट्रू है फॉल्स है? ट्रू है ना, कोई कॉमन नहीं है ना, कोई कॉमन वर्ड नहीं है। बट सब ऐसे, ऐसे मैं एग्जांपल दे रहा हूँ कितना समझ में आता है। तो ऐसे कि नोएडा, नोएडा इज लाइक डिसजॉइंट विथ दिल्ली, ट्रू है फॉल्स है? हाँ नोएडा इज डिसजॉइंट विथ दिल्ली, ट्रू है फॉल्स है? फॉल्स। क्यों? ज्वाइंट है ऐसा सोच सकते हैं, मैंने सोच लो, ठीक है। व्हाट इज द आंसर? सो दिस इज डिसजॉइंट है ना। एक्चुअली इससे बढ़िया इंटरसेक्ट है, इंटरसेक्ट निकालेंगे तो खुद ही बता देगा कि है कि नहीं, है ना। जैसे यहाँ पर इंटरसेक्ट करते तो ये फॉल्स आता और ये ट्रू आता, तो डिसजॉइंट इज जस्ट अपोजिट ऑफ क्या? इंटरसेक्ट, नॉट पॉइंट। ओके, दिस इज द पार्ट ऑफ द आई एम टीचिंग, ओके। तुम अभी कल ही भूल जाओगे, सब लोग भूल जाएंगे, ठीक है। किसी को याद वाद नहीं रहेगा, और इसको याद करना भी नहीं, ऐसा नहीं रट्टा मारो बैठे इंटरव्यू में कोई पूछे वाला नहीं है, सब चीज़ें, ठीक है। एवरीवन लास्ट क्या लॉजिक पूछेगा ना, ये थोड़ा बचेगा डिसजॉइंट बताना क्या होता है, नो वीडियो लास्ट, ठीक है। बस ये है, पता रहेगा तो कभी जरूरत पड़ेगी तो तुम देख के लिख सकते हो, अप्लाई कर सकते हो इसको, ठीक है। इसलिए पता होना चाहिए। यूनियन, यूनियन मीन्स सपोज यू हैव टू सेट, यू वांट टू मेक वन सेट, दोनों को यूनियन करना है। तो कौन सा ले लिया, कोई बात नहीं। देखो इधर, सो ये देखो यहाँ पे ये पीपुल है और ये तुम्हारे पैर हो गए, ठीक है। तो ये दो तुम्हारे क्या हो गए, सेट हो गए, ठीक है। मैं इसको ज्वाइन करना चाहता हूँ बेसिकली, तो जस्ट राइट पीपल यूनियन एम्पायर, देखो दोनों ऐड हो गए, सो दोनों एक ही में आ गए, पॉइंट। सो सिंपल। यूनियन पढ़ते होगा ना तुमने, पढ़ा होगा ना यार। हाँ कंबाइन करना है ना। अच्छा ये बात है, यहाँ पर टू टू है लेकिन एक ही बार टू आया है ना, ये पता है ना। हाँ ये पता होना चाहिए। देखो यूनियन, हाँ बताओ। हाँ हाँ सेट में होता है बिल्कुल, सब सेट में है ना, सेट में है ना सिर्फ। नहीं यूनियन कहाँ बुलियन वैल्यू यूज कर रहा है। तो दिस ज्वाइन में हमें बुलियन इसलिए क्योंकि हमें वो रिटर्न में बता रहा है कि कोई कॉमन है या नहीं है। बुलियन, करेक्ट करेक्ट। लेकिन वो बुलियन मतलब जैसे यूनियन को वैल्यू देगा ना, क्योंकि यूनियन हम पता करना चाह रहे हैं क्या क्या है, ठीक है। दैट्स व्हाई देखो यूनियन का ये साइन है, अगर चाहो तो विदाउट राइटिंग यूनियन यू कैन डू लाइक दिस आल्सो, ठीक है। देखो ये तुम्हारा हो गया इट्स सुपर, सुपर सेट पता है क्या होता है? देखो यहाँ पे लिखा है ना बी इज सुपर सेट ऑफ सी। नहीं देखो जस्ट उसका उल्टा होता है सबसेट का। जैसे मैं बोलता हूं कि करेक्ट, हाँ बिल्कुल सही। जैसे मैं बोलता हूं कि नोएडा इज सबसेट ऑफ इंडिया, करेक्ट है। बट इसको ऐसे बोल सकते हैं इंडिया इज सुपर सेट ऑफ नोएडा,
समझ रहे हो? सुपर मतलब उसके पिताजी, गॉट इट? तो बोले कि एक्स इज सुपर सेट ऑफ वाई, इसका मतलब एक्स जो है वाई एक्स के अंदर है, लेकिन अगर बोले एक्स इज सबसेट ऑफ वाई मतलब एक्स वाई के अंदर है। दोनों में अंतर समझ में आ गई बात? सुपर सेट सबसेट में लिख लेना कहीं अगर ध्यान नहीं रहे तो, वैसे तुम्हें याद रखने की जरूरत नहीं है, रिकॉर्डिंग जब भी देख लेना याद पड़े तो, ठीक है? इसको रट्टा उट्टा नहीं मारना है, जो लोग मारेंगे ना उनका कुछ होने वाला नहीं है, मैं बार बार बोल रहा हूँ, क्योंकि मुझे पता है ना कुछ लोग क्या करेंगे, अब उसको याद करेंगे, उसके बाद रात में फ़ोन करेंगे, सर वो सबसेट का क्या मतलब था बताना एक बार, हमें खुद ही नहीं याद रहता है, ठीक है? सो डोंट वरी, डोंट डू दिस, ठीक है? कोई मतलब चीज़ नहीं है। हाँ, पता रहेगा तो बहुत हेल्प हो जाएगी, ठीक है? तो पता रहने का मतलब ये नहीं होता कोड याद होना, ठीक है? पता है तो आप गूगल भी कर सकते हो ना यार, अगर आप आपको पता चल गया कि हम यूनियन निकाल सकते हैं सेट में, हम ये निकाल तो गूगल कर लो ना, कोड निकाल लो उसका एक लाइन का, है कि नहीं? अगर कंपनी को टेप रिकॉर्डर चाहिए, ठीक है, टेप रिकॉर्डर थोड़ा चाहिए कि जो उसको बोला जाए याद कर लो और वो रख ले और जब जरूरत पड़े वो बताए, उसको थोड़ा चाहिए भाई, लॉजिकल आदमी चाहिए ना जो काम करे, ठीक है? तो टेप रिकॉर्डर नहीं चाहिए, रट्टा नहीं मारना बिना मतलब का। चलो, और समझते हो ना, यूनियन ही होता है एक्चुअली, ए या बी, ठीक है? इंटरसेप्ट, इंटरसेप्ट मतलब क्या कॉमन है, ठीक है? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। कई बार क्या होगा ना, तुम डेटाबेस में, एक डेटाबेस है दूसरा डेटाबेस है, मतलब डेटा सेट है, मान लो लिस्ट ही है, एक बहुत बड़ी लिस्ट है, जैसे 1000 डेटा है, एक वाई इसमें 1000 डेटा, मान लो कि तुम वर्किंग बैंकिंग डेटा, और एक में अकाउंट नंबर दिया, दूसरे में भी अकाउंट नंबर दिया है, और तुम चाहते हो कि कौन, मान लो एक जगह सेंड हुआ है पैसा और एक में रिसीव हुआ है, और तुम चाहते हो कि क्या कुछ ऐसे भी अकाउंट्स है क्या जहाँ से ही सेंड हुआ है उसी में रिसीव हो गया है। फ्रॉड समझते हो? फ्रॉड जैसे क्या हुआ, मेरे को दिखाना है ऊपर कि मैं पैसे भेज रहा हूँ, तो मैंने क्या किया, तुमको पैसे भेजा और तुमसे उसको भिजवाया, फिर अपने आप में डलवा लिया वही सेम अमाउंट, तो पैसा घूम गया, सामने गया तो पैसा घूम गया, उसे क्या पता, मैंने तुम्हें भेजा था, मैंने भेज दिया, वो बात सोच रहा, समझ रहे? दिस कॉल्ड फ्रॉड। फ्रॉड कैसे होता है? जैसे वो होते हैं ना छोटे छोटे दुख, मतलब मैं डेटा पे काम कैसे बता रहा हूँ, वो ना एक होते हैं ना जो गांव वगैरह में होते हैं, जो वो उनको ना पैसा जब ट्रांसफर करते हैं तो उसी पर उनको पैसे मिलते हैं, क्या बोलते हैं उसको, कुछ बोलते हैं ना, वो गांव में दुकान खोल के बैठते हैं आजकल, वो आधार कार्ड से वो करवाते हैं, है ना? तो हाँ, तो क्या करते हैं, हाँ, जन सेवा केंद्र से कुछ नाम होता है, वो क्या करते हैं, जबरदस्ती वो पैसा ट्रांसफर करते रहते हैं, समझ रहे हो? और घुमा के तुमसे कहेंगे यार आ जा, तो दोस्त है यार मेरा, आ जा, मेरे 150-200 रुपये मिल जाएगा, तो मैं कहेगा हाँ मुझे क्या दिक्कत है, ले, उसका पैसा अपने रिलेटिव को भेजा, रिलेटिव से इनको फिर वापस इधर आ गया। बात समझ में आ रही है? तो इसको अगर पकड़ना है तुम्हें तो मतलब ऐसे पकड़ में नहीं आएगा, और भी कुछ करना पड़ेंगे, बट मैं जस्ट टेलिंग यू कि मैंने इस डेटा पे काम किया है, तो तुम क्या कर सकते हो, दोनों को डेटा पकड़ो और वो इंडेक्स निकाल लो, पता चलेगा कि कौन कौन ऐसे अकाउंट है एटलीस्ट जिससे डेटा गया है और डेटा उसी में पैसा आया है। इसका मतलब बिल्कुल भी नहीं है कि सारे फ्रॉड है, कई बार जेन्युइन भी हो सकता है, डेटा पैसा उसने कहीं और भेज दिया और कभी उसके, मान लो किसी और ने उसके पैसे भेज दिया, तो ये जेन्युइन भी हो सकता है, ऐसा नहीं फ्रॉड है, बट हाँ इन पे ज़्यादा आपका फ्रॉड होने के चांसेस बढ़ सकते हैं, ठीक है? गॉट इट? एनीवे, सो यू कैन डू द इंटरसेक्ट ऑल्सो, है ना? देखो, सो सिंपल, x माइनस वाई अगेन वी कैन डू x माइनस वाई एज वेल, एंड विल फाइंड द डिपॉजिट डेटा। एनीवे, सो वी आर एबल टू फाइंड द इंटरसेप्ट, गॉट इट? किसी को दिक्कत है? एनीवन? सो सिंपल ना, टू सिंपल। सो वी कैन डू दिस, इवन यू कैन डू डिफरेंशिएट, एक में से जो है उसको हटाना चाहते हो तो जस्ट राइट x माइनस वाई, ऑटोमेटिकली हट जाएगा। क्लियर? वी कैन डू दिस, क्लियर अगेन सेट बचेगा, यही सेम डिक्शनरी में था। क्लियर? किसी को दिक्कत? सो सिंपल, इट्स सिंपल, इसमें कुछ है नहीं दुनिया में कुछ भी, इसमें कुछ बचा है? बोलो भाई, मैं जिम्मेदार नहीं हूँ। हाँ, सही है, बढ़िया, सही है, आते हैं क्लास लेके। क्यों? सही है सर, बढ़िया है। बोलो जी, किसी को दिक्कत इसमें? एनीवन? सो वी कैन डू क्लियर, है ना? ऑपरेशन फॉर सेट्स, सी दिस, जैसे एक्स 3 इन एक्स चेक करना, ये टू कल भी आ रहा था ये काम ना, लिस्ट में भी काम कर सकते हो, ये कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, ऑलवेज यू कैन डू सच थिंग्स, ठीक है? एनीवे,
सो सिंपल, इसमें कुछ करने की जरूरत नहीं है तुम्हें, सबसेट है ये सब, आसान चीज़ें हैं, कुछ भी इसमें तुम्हें करने की जरूरत नहीं है। कल फाइल भेजा था, देखा तुम लोगों ने, तो हो गया ये ऑपरेशन। फाइल नहीं खुल रही थी, हाँ यार किसी और नहीं बोला था, क्यों फाइल नहीं खुल रही थी? ऐसा क्यों, वैसा क्यों? अच्छा फोन में खोल रहे थे तुम लोग, जुपिटर पे खोलोगे ना, वो जुपिटर नोटबुक है तो। VS कोड पे ना, तो VS कोड पे भी खुलेगा, क्यों नहीं खुलेगा, कोड है तो खुलेगा ही। नहीं फोन पे, अच्छा HTML भी आता है यार इसका, अगर तुम्हें फोन पे चाहिए ना तो एक काम करना पड़ेगा, यहाँ पे जाओ, यहाँ पे आता है ना HTML, इस पे खोलो, डाउनलोड कर भेजूंगा ना, तो ये तुम्हारा स्लाइड भी बन जाती है इसकी। जुपिटर नोटबुक बहुत शानदार नोटबुक है वैसे। चलो डन, किसी को दिक्कत है इसमें? है कोई परेशानी? बोलो, क्लियर? तो देखो यार, अपना डिक्शनरी हो गया और सेट हो गया। डिक्शनरी ही थोड़ा समझदार था, सेट तो तुम्हें बहुत सोचने की जरूरत नहीं है, बस तुम्हें पता रहना चाहिए क्या हो रहा है, ठीक है। अब बताओ लिस्ट के बारे में पता है? आई थिंक लिस्ट तुम्हें ऑलरेडी आता होगा, है ना, इतना लिस्ट पे तो क्वेश्चन करते थे हमेशा। तो लिस्ट देखो यार, लेट्स टॉक अबाउट लिस्ट, थोड़ा सा लिस्ट पे देख लेते हैं। लिस्ट मुझे होता नहीं ज़्यादा, एल 2 3 4 5 मान लो 6 है, 10 है ना। अच्छा आप बताना कि पता है कि नहीं, क्या इंडेक्सिंग की तरह वर्क करता है? करता है। लेंथ निकाल सकते हैं? निकाल सकते हैं। अपेंड कर सकते हैं? कर सकते हैं। डिलीट कर सकते हैं क्या? हाँ, एक डॉट। अच्छा पॉप तो आई थिंक इसमें भी करते होंगे, देखो पॉप हो गया, 6 10 इज डाउन, है ना, तो पॉप तो इसमें भी कर सकते हैं। अच्छा डिलीट के लिए होता है बिलीव, डिलीट होता है या फिर रिमूव होता है शायद ना, एक मिनट जो मुझे भी याद नहीं आ रहा है। एच फर्स्ट साइड 4, सो नाउ चेक दिस, सो 4 इज रिमूव फ्रॉम हियर, है ना, तो यू कैन डू द रिमूव, जो भी डेटा रिमूव करना रिमूव कर दीजिए, है। तो 4 तो डिलीट हो गया ना, 5 करें, यहाँ पर डिलीट लिखना चाह रहे हो तो डिलीट भी लिख लो, नहीं स्पेलिंग गलत है क्या? गलत है, अच्छा DEL क्या चाहते हो, अब होता होगा तो पता नहीं, दिख लेना है। क्लियर ना, एक्स डॉट क्लियर, करो, क्लियर हो गई, तो वो तो हर जगह क्लियर हो जाएगी, ठीक है डन। अपेंड करना आता है, इंसर्ट करना आता है, इंसर्ट करना आता है, इंसर्ट जैसे अपेंड क्या होता है, एक्स डॉट अपेंड, मान लो आप अपेंड किया 10, तो अगर एक्स देखोगे तो एक्स में 10 आ चुका है, फिर तुमने लिखा एक्स डॉट अपेंड, मान लो यहाँ पर तुमने 100 कर दिया, अब देखो एक्स 10 के बाद 100 है, लेकिन अगर तुम चाहते हो फर्स्ट पोजीशन पे करना तो तुम्हें इंसर्ट करना पड़ेगा, एक्स डॉट इंसर्ट, मान लो 0 पोजीशन पे 10, नाउ इफ यू चेक, अरे तो फिर से 0 पे करो, अब मैं भी यहाँ पे 20 कर दो, हम देखो 20 आ गया 0 पोजीशन पे, तो पोजीशन पे भी कर सकते हैं। गॉट इट? एनीवन हैव एनी डाउट एनीवेयर, जस्ट टेल मी। क्लियर और नॉट? किसी को दिक्कत है इसमें? अब बात करते हैं टपल की। देखो टपल जो होता है ना, तो थोड़ा सा अच्छा है टपल, अच्छा मतलब कि टपल जो होता है ना, जैसे तुम्हारे पास इसको ना अगर कोई बोले कि व्हाट इज डिफरेंस बिटवीन लिस्ट एंड टपल, ठीक है, सो व्हाट इज एक्चुअली, पहला बात है कि टपल जो है ना वो म्यूटेबल है, इम्यूटेबल है सॉरी, यू आर नॉट एबल टू चेंज द डेटा ऑफ टपल, है ना, वंस यू स्टोर इट्स स्टोर इज नॉट गोइंग टू चेंज। एक्चुअली मैंने दिखाया भी था, जब तुम लोगों को दिखाया था मैं, कॉल बाय वैल्यू और कॉल बाय रेफरेंस जो पढ़ा रहा था, तो याद है, तो लिस्ट में हम वैल्यू बदल सकते हैं, है ना, टपल में नहीं बदल सकते। टपल क्या होता है, जस्ट लाइक दिस वन, गिव यू डेटा, दिस इज टपल, ठीक है। यहाँ पे तुम ड्रॉप ड्रॉप कुछ नहीं कर सकते, ना तो अपेंड कर सकते हो ना तो डिलीट कर सकते हैं, यहाँ अपेंड अपेंड नहीं कर सकते इसके अंदर, ठीक है, इंसर्ट भी नहीं, एक बार जो बन गया वो बन गया, यू आर नॉट एबल टू चेंज द डेटा हियर ना, कुछ नहीं कर सकते,
समझ में आ रहा है? मैं कहूँ कि मुझे इंटेंशनली डेटा डालना है तो टाइप चेंज करना पड़ेगा, पर लिस्ट बदलना पड़ेगा, और फिर डेटा डालिए, फिर टपल में कन्वर्ट कर दीजिए। तो टपल में आप ये सब कुछ भी नहीं कर सकते। किसी को दिक्कत है इस बात से? बोलो यार। हाँ पूछिए, पूछे मंत। हम्म। तो मिनिमम स्टोर तो वो लेगा टपल में ऑलवेज। ठीक है। फास्ट पूछा होगा, कैसे फास्ट होगा? हाँ हाँ हाँ। टपल, टपल, ऑलवेज टपल, ऑलवेज टपल, टपल, ऑलवेज टपल, ऑलवेज टपल। ठीक है। टपल इज वेरी नाइस। बता रहा हूँ ध्यान से। देखो स्पेस तो इससे मतलब नहीं कि लिस्ट है टपल सेट है, क्योंकि जिसकी जितनी स्पेस होते हैं तो स्पेस लेगा ही वो। सबसे बड़ी बात है ना, ये बहुत स्पीड में तुम्हें लिस्ट सबसे फास्ट मिलेगा। क्यों? क्या कौन बताओ, स्टैटिक कौन है, लिस्ट या टपल? स्टैटिक कौन है, डायनामिक कौन है? लिस्ट या टपल? हाँ, लिस्ट डायनामिक है। उसमें हम डेटा अपेंड भी कर सकते हैं, इवन हम टाइप भी बदल सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। कि टपल में हम एक बार बनाने के बाद कुछ चेंजेस कर सकते हैं? नहीं ना। तो उसको इस बात का ध्यान रखना है क्या कि हमें डेटा बढ़ सकता है नहीं बढ़ सकता है? मेमोरी एक बार हो गई फिक्स हो गई ना, है ना? अब क्वेश्चन मिलेगा तब बता सकते हैं, बट आई बिलीव कि वो ये नहीं पूछ रहा होगा। अच्छा, ठीक है, बट उसके भूमिका कुछ और होगी कि इससे तो नहीं है, बट ये पूछ सकता है कि सिक्योरिटी, सिक्योरिटी इज ऑलवेज बेटर इन टपल। ठीक है, ऑलवेज। मैंने बताया भी था एक बार, है ना? और तुम्हारा जो है वो स्पीड। ठीक है, स्पीड ऑलवेज। अरे बिल्कुल, फ्लोट ज़्यादा ही लेगा ना। पॉइंट, एक तो पॉइंट डालना है, पॉइंट डालते ही इस पे ज़्यादा हो गया। फ्लोट तो ज़्यादा ही लेगा ना हमेशा। अरे ये बताओ, 1 2 3 दशमलव 4 5 है, और केवल लिखना होता है 1 2 3 4 5। पहले ही दशमलव आते ही एक स्टोरेज बढ़ गया, है ना? ये सोचने वाली बात ही नहीं है। ठीक है। सो सिंपल, ये बहुत ही सिंपल चीज़ें थी। ठीक है, इसमें कोई बहुत बड़ा गेम नहीं है। अब बताओ अभी तक में कहाँ पे डाउट है, क्योंकि अब हम जाएंगे उप्स की तरह। और उप्स भाई, अब आज के बाद रेगुलर क्लास अटेंड करिए। ठीक है, एकदम नहीं समझ में आएगा, बहुत बढ़िया चीज़ है। ठीक है, बहुत टफ चीज़ है। ठीक है, हवा भी नहीं लगा कहाँ से कहाँ पहुँच गए हम लोग। ठीक है, तो अब अगर आप क्लास मिस करेंगे तो मैं क्या, कोई भी हेल्प नहीं कर पाएगा। ठीक है, गॉट इट? थोड़ा सा टफ रहेगा। सो प्लीज़ ऑल ऑफ यू, मतलब अभी तो मैं उसका स्टोरी बताऊंगा, रुक जाओ, नोट पैड ऐड करता हूँ मैं। पहले बताता हूँ, अब हम मतलब अपने बहुत थ्योरेटिकल चीज़ें पे जाएंगे। ठीक है, 1 2 दिन। और ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ऐसा थ्योरी हो जाना, है ना? ऑनलाइन वाले, ऑफलाइन में तो नहीं सो सकते। ऑनलाइन बैठे हैं, रुको सो लेते हैं, पता नहीं क्या चल रहा है। ऐसा जिसने किया ना, तो हमसे बहुत चीज़ चली जाएगी, क्योंकि इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछते हैं और इसको पढ़ने पे तुम्हें पूरी बुक पढ़नी पड़ जाएगी। ठीक है, जनरल को बताता होता तो नहीं है। विश्वास नहीं हो रहा है तो क्या करो? बोलो कौन सी लैंग्वेज फास्ट है, सी या जावा? जावा ही है ना, तभी तो खूब काम होता है। बहुत बढ़िया। और कोई? क्या पता है, ऐसे कैसे बोले हो जावा फास्ट है? जावा याद था इसलिए। कॉलेज में पढ़े हो जावा सी? कौन सी लैंग्वेज पढ़े तुम? पॉलिटेक्निक डिप्लोमा हो ना? कोई लैंग्वेज पढ़े हो कॉलेज में? नहीं, फिर से बोलो, क्या बोले? अच्छा, गूगल कुछ लोग कर रहे हैं क्या? फिर पढ़ के बताएंगे कौन सी बड़ी है। जो प्रियंका ने बोला सी फास्ट है, आशीष ने बोला सी फास्ट है। एक्चुअली सी फास्ट है, देखो क्यों बता रहा हूँ, ध्यान से देखो। देखो, एक लैंग्वेज होती है उसको बोलते हैं उप्स। उप्स का फुल फॉर्म क्या होता है? वेरी गुड, है ना? ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। ठीक है, और एक क्या होती है, उसको बोलते हैं प्रोसीजरल लैंग्वेज। ठीक है, प्रोसीजरल। ठीक है, सी इज अ प्रोसीजरल, इट्स नॉट उप्स लैंग्वेज। ठीक है,
अगर तुम्हें सी में प्रिंट इंडिया लिखना, जस्ट राइट प्रिंट इंडिया, है ना, थोड़ा बहुत तो लिखते हो, हैज इंक्लूडेड स्टूडियो एंड कोनी एंड ऑल, एंड देन स्टार्ट राइट प्रिंट इंडिया। क्या जावा में ऐसे लिख सकते हो प्रिंट इंडिया डायरेक्टली? फर्स्ट यू हैव टू बिल्ड अ क्लास ना, कि उप्स ना वो, तो वहां पे बिना क्लास बनाए कुछ कर ही नहीं सकते। तो प्रिंट इंडिया भी लिखने के लिए तुम्हें क्लास बनाना पड़ेगा वहां पे, है ना, तब लिखोगे ना। लेकिन सी इज ए प्रोसीजरल लैंग्वेज, तो आप वहां पर डायरेक्टली प्रिंट इंडिया लिख दिए। पाइथन में क्या हमने प्रिंट इंडिया डायरेक्टली लिखा था क्या? लिखा था ना। तो पाइथन उप्स है कि प्रोसीजरल है, बताओ? है प्रोसीजरल हुआ ना, वो पाइथन दोनों है, ठीक है। हमें मन किया हमने प्रोसीजरल कर दिया, हमने मन किया उप्स में कर दिया। तो सबसे पहला फायदा समझ में आया पाइथन का? बोलो। हम्म, पहला फायदा समझ में आया कि नहीं आया? करेक्ट। वी कैन, जैसे हमने अभी तक बनाया ना, जब हमें जरूरत पड़ी हमने प्रोसीजरल मार दिया, जब हमें जरूरत पड़ी तब हमने आराम से ये मार दिया, ठीक है। और भी फायदे बताऊंगा, आज थोड़ा पढ़ ले, जैसे भी हम थोड़ा सा उप्स पढ़ेंगे, अंदर जाएंगे, तो जैसे हम लोग बात करेंगे जब इन, करेक्ट बिल्कुल, सी प्लस प्लस भी, है ना, कभी कोड किया जब हमें नहीं किया ना, क्यों तो पता चलता, ठीक कोई बात नहीं। हाँ बिल्कुल, हेमंत सही है। दूसरा मैं बता रहा था क्या, हाँ, ऐसे अभी इनकैप्सुलेशन वगैरह पढ़ेंगे हम लोग का, अभी नहीं पढ़े, आने वाले टाइम पढ़ेंगे, तो पता चलेगा कि फिर बताऊंगा कि पाइथन यहाँ भी क्यों बेटर दिखती है ना। वहाँ भी मैं दिखाऊंगा, देखो यहाँ भी बेटर दिख रही है पाइथन अदर्स उप्स वाले से, ठीक है। बट राइट नाउ तो ये समझ में आ गया, इतना समझ में आया पाइथन बेटर यहाँ क्यों नजर आ रही है ना। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि बाइक लेके छत पर चढ़ जाना बोलना है पाइथन बेटर है जावा बेकार है, ऐसा कुछ नहीं है, ठीक है। हम यहाँ पे बस एक पॉइंट पे कंपेयर कर रहे हैं, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ तक में? तो ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम, ठीक है, इसका फुल फॉर्म तो सबको याद होगा ही होगा, है ना, जो भी दुनिया में है। चलो बात करते हैं पहले तो कि भाई ऑब्जेक्ट क्या होता है, ठीक है। तो ऑब्जेक्ट बात करने से पहले बात करते हैं क्लास क्या होता है, ठीक है। बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, जल्दबाजी नहीं है, और समझना होगी। बहुत लोग ना, बहुत लोग हैं मैं बता रहा हूँ, उनको समझ ही नहीं आता क्लास है क्या, है ना, उप्स है क्या। वो उप्स पढ़ लेते हैं, प्रोग्राम भी बना लेते हैं, बट उनको ये नहीं पता होता है क्लास क्या है ना, ऑब्जेक्ट क्या है, वो इसी में परेशान रहते हैं। तो चलो बताओ क्लास क्या है, कोई जना। अरे क्लास पता नहीं है, थर्ड क्लास, फोर्थ क्लास, फिफ्थ क्लास नहीं पढ़ते थे क्लास में? टेंथ तक पढ़ा हुआ ना, ट्वेल्थ तक तो पढ़ा, तभी डिप्लोमा किया है ना। कितने तक पढ़े हो, ट्वेल्थ तक कि ट्वेल्थ तक? ट्वेल्थ तक पढ़ो फिर डिप्लोमा कर रहे हो? वैसे टेंथ तक ही डिप्लोमा कर सकते हैं ना, टेंथ के बाद ही। ओके, तो पढ़ा है टेंथ तक ना, तो क्लास नहीं पता, क्लास वन, क्लास टू, क्लास थ्री, तो वही तो पूछ रहा हूँ क्लास क्या होता है। अरे अंग्रेजी हिंदी बोल, क्या बोल रहे हो? सिलेक्शन ऑफ मेथड पता नहीं क्या क्या बोल दिए, कलेक्शन ऑफ मतलब, मुझे सिंपल क्लास बताओ ना। एक क्लास जिसमें सब बच्चे बैठे होते हैं, स्टूडेंट बैठे होते हैं ना, तो स्टूडेंट एक क्लास हो गया, है कि नहीं। एक क्लास जिसमें 50 स्टूडेंट बैठे हैं, सारे स्टूडेंट क्या हो गए, एक क्लास हो गया। तो स्टूडेंट को क्या बोलेंगे, एक क्लास बोल देंगे। अब स्टूडेंट में एक रमेश है, एक दिनेश है, सुरेश है, तीन अलग अलग नाम है, 50 अलग अलग नाम होंगे, उनको क्या बोलेंगे, ऑब्जेक्ट, नॉट मेथड, नहीं मेथड, मेथड अभी नाम ही नहीं लिया मैंने, बोला अब इसे बोला ऑब्जेक्ट और क्लास, तो मेथड पे आ गए, जल्दी जल्दी भागो फिर कुछ समझ में नहीं आएगा। समझ में आया क्लास? क्लास मतलब कि एक ही तरह का समूह ना, जैसे विद्यार्थीगण बैठे हुए हैं क्लास नाइन्थ के, क्लास नाइन्थ का क्लास हो गया ये, है कि नहीं, तो एक ही क्लास हो गया, और जितने विद्यार्थीगण हैं वो क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। रमेश, दिनेश, सुरेश, जो भी बच्चे बैठे हुए हैं, सारे सारे क्या हो गए, ऑब्जेक्ट हो गए। आर यू गेटिंग माई पॉइंट और नॉट? तो क्लास और ऑब्जेक्ट समझ में आई बात, कि क्लास क्या होता है, ऑब्जेक्ट क्या होता है। अब स्टूडेंट जो बैठे हुए हैं सारे ऑब्जेक्ट हो गए। अब सारे स्टूडेंट कुछ कर सकते हैं, मान लो कोई मैथ पढ़ रहा है ना, कोई मैथ पढ़ रहा है, लिख अपना, कोई गणित का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई साइंस का क्वेश्चन सॉल्व कर रहा है, कोई इसी में गाना गा रहा है मान लो बैठ के। तो ये सब क्या हो गए, उनके एक्शन हो गए, दे आर डूइंग समथिंग, जो एक्शन हो गए मेथड हो गए,
फंक्शन हो गया, मैंने बोला फंक्शन, फंक्शन लिखो गाना गाने के लिए, तो राइट डिफ फंक्शन, कोई कॉल करेगा, प्रिंट गाना गा रहा है, तो क्या हो गया, वो मेथड हो गया। तो क्लास क्या था, समूह था, जो लोग उसके अंदर थे वो ऑब्जेक्ट थे, और वो जो कुछ कर रहे हैं वो मेथड हो गया। और इंस्टेंट या वेरिएबल क्या है, उनके नाम, रमेश दिनेश नाम, जो भी कुछ वेरिएबल है सब इंस्टेंस है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट नॉट? समझ में आ गई बात, पूरी क्लास, पूरी उप समझ में आ गया भाई, यही उप्स है, इसी को तुम्हें समझना। अच्छा उप्स जरूरत क्यों है, उप्स की जरूरत क्यों है, देखो वाई वी नीडेड उप्स, सबसे बड़ी जरूरत है कि हमें ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड लैंग्वेज चाहिए क्यों, है ना। देखो प्रोसीजरल लैंग्वेज का एक प्रॉब्लम है, सपोज यू राइट हो, एक्चुअली ना सबसे बड़ी प्रॉब्लम प्रोसीजरल लैंग्वेज के साथ ये है कि जो तुम फंक्शन बनाते हो, तो अब तक जो हम लोग सब किए ना, सब प्रोसीजरल था। जैसे मैं तुम्हें बनाया एलसीएम के लिए फंक्शन बनाओ, तुमने एलसीएम के लिए फंक्शन बनाया, मैंने कल आकर फिर बोला राइट फंक्शन विच इज गोइंग टू ऐड, नहीं सुनो, पहले राइट फंक्शन टू फाइंड द प्राइम नंबर, तो बिल्ड अ फंक्शन फाइंड द प्राइम नंबर। देन आई सेड, थोड़ी देर बाद अगले दिन मैंने क्वेश्चन दिया, राइट अ फंक्शन विच इज गोइंग टू ऐड ऑल द प्राइम नंबर, अगेन राइटिंग ए प्रोग्राम, उसमें तुम सारे प्राइम्स कैलकुलेट कर रहे हो, फिर उसको ऐड कर रहे हो, है ना। सो बट उप्स क्यों है, उप्स इंपॉर्टेंट क्यों, उप्स एक्चुअली इंपॉर्टेंट इसलिए है कि इसको यूज करके हम यूज कर सकते हैं कोड्स को, रीयूजेबल बना सकते हैं प्रोग्राम को, ठीक है। वी आर एबल टू यूज द प्रोग्राम, जो भी प्रोग्राम हम अगर प्रोसीजरल मेथड से लिखे, उसको लिखने में बहुत कोड चाहिए, उसको हम उप्स से बहुत ही छोटा बना सकते हैं कई बार, है ना। कॉल कर सकते हैं, डेटा और प्रोग्राम को मर्ज कर सकते हैं, बेसिकली वेरी पॉइंट, दैट्स व्हाई उप्स इज रियली नीडेड, ठीक है। कई बार इतना बड़ा प्रोसीजरल प्रोग्राम होता है कि जो वो जो तुम्हारा कंपाइलर है, कई बार वो कंपाइलर ही भूल जाता है कि एक्चुअली क्या हो रहा है, इतना बड़ा कोड हो जाएगा, ठीक है, जो बड़े बड़े कोड्स होते हैं। तो उप्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। रीयूजेबिलिटी है, इजिली हम कई लोग काम कर सकते हैं एक प्रोजेक्ट पे, ठीक है, बट ऐसा नहीं है कि प्रोसीजरल नहीं, प्रोसीजरल भी कर सकते हैं, ठीक है। तो ये है उप्स की इंपॉर्टेंस। अब उप्स में तीन ही चीज है, एक है तुम्हारा क्लास, एक है ऑब्जेक्ट, और एक है मेथड। वेरिएबल तो कुछ होता नहीं है, वेरिएबल तो मतलब होता है बट सिंपल है। अब तुम्हें समझ में आ गया क्या है क्लास, समझ में आ गया क्लास मतलब ये तुम्हारा जैसे क्लास है, तुम लोग बैठे हुए, तुम लोग ऑब्जेक्ट हो गए, और तुम्हारा एक्शंस जो है मेथड हो गया, ठीक है। नहीं नहीं सर, नहीं 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 नहीं, मेथड्स क्या होंगे, मेथड्स एक्चुअली फंक्शन होते हैं, ठीक है। तो कोई कुछ पूछे कि व्हाट इज मेथड, तो जनरली यू कैन से एक्शन ऑफ द ऑब्जेक्ट इज मेथड ना, बट अगेन इट सेज ओके, सो हाउ कैन यू डिफाइन ए मेथड, जस्ट अ फंक्शन, वी ऑलरेडी कवर फंक्शन, हमने फंक्शन पढ़ लिया है, तो फंक्शन ही मेथड है। अगर आप कोई फंक्शन क्लास के अंदर डिफाइन करोगे तो उसको फंक्शन ना बोल के क्या बोलेंगे, बस काम खत्म, उप्स आ गया समझ में। सो इट्स वेरी सिंपल, है ना, इट्स वेरी सिंपल, रियली सिंपल, क्लियर, डन और नॉट, किसी को दिक्कत बोलो, सो सिंपल। तो दिस इज कॉल्ड ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग सिस्टम। In object oriented programming system we have object, we have a class, we have method and we have variable। किसी को कोई दिक्कत है तो बताइए, है क्लियर। सो हाउ कैन वी मेक अ क्लास, ओके, हाउ कैन वी मेक अ क्लास, क्या ये डॉग, डॉग कुत्ता, डॉग वो क्लास है एक, है ना, क्लास है ना, वो तो डॉग एक क्लास है। अब डॉग एक क्लास है, बट तुम्हारे घर पे एक डॉग है टॉमी, टॉमी क्या हुआ, ऑब्जेक्ट हुआ, टॉमी भोगता है, तो भोगना क्या हो जाएगा उसका, मेथड हो जाएगा। टॉमी कितने लेग्स हैं, तो ये इंस्टेंट होंगे, वेरिएबल हो जाएंगे, उसके 4 पैर हैं, वाइट कलर है उसका, है ना, ऐसे कुछ कर सकते हैं, टिल उसकी पूछ बड़ी है, लंबी, लॉन्ग, मान लो जैसे है, अगर होता नहीं, जैसे कुत्तों की पूछ छोटी होती है ना, बड़ी नहीं होती है ना जनरली, बट फिर भी होती जाते वेरिएबल्स, है ना। सो जस्ट अगर ये तुम्हारी अंडरस्टैंडिंग बन गई तो काम हो जाएगा पूरा उप्स का। ऑलवेज थिंक लाइक दिस, whenever someone asks about oops, just think like this, we have a class, always think it's a class, we have a क्या, objects, methods, variables, instance, काम हो जाएगा, ठीक है। आज तक हमने जब भी देखा, हम देखा कि हम जो कुछ भी लिख रहे हैं मेमोरी अलॉट हो रहा है ना, whenever writing something we are able to allot the memory,
जैसे कि हमने इंटीजर लिखा सिंपल, तो उसका हमने मेमोरी अलॉट किया ना अभी तक। जैसे लिखा x इज इक्वल टू 10, सो वी आर एबल टू स्टोर द, हम देख पा रहे हैं कि वहाँ पर कहाँ पे उसकी मेमोरी स्टोर हो रही है। नहीं पॉइंट, हमने फंक्शंस बनाए, फंक्शंस के भी देखे, लिस्ट बनाया, लिस्ट का देखा, टपल सबका देखा हमने मेमोरी एलोकेशन आईडी वर्क करके, है। सो विल सी दैट आल्सो कि हाउ मेमोरी विल अलॉट इन क्लास, वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो इसमें एक गेम है, गेम क्या है, तो आगे बढ़ेंगे ये सब चीज़ों को, मैं तुम्हें बस आइडिया दे रहा हूँ। हाउ जो रीयूजेबिलिटी है कैसे डिफाइन होती है, देखो कैसे हम रीयूज कर पाएंगे। सपोज यू हैव योर फादर ना, तो आपके पिताजी हैं आपके पास, उनके पास मान लो कि उन्होंने ऑलरेडी मेहनत करके एक दिल्ली में घर बना लिया है, ठीक है। तो अब आपको, जब आप कमा रहे हो तो आपको घर बनाने की जरूरत है नहीं, और उन्होंने घर बना दिया है ना। तो अब आप और कुछ बनाओगे, मान लो आप कुछ भी, मान लो आप कोई, मान लो कोई बड़ी गाड़ी ही खरीदना चाह रहे हो, है ना। मान लो उन्होंने कमा के केवल घर ही बनाया, गाड़ी नहीं ले पाए वो, तो आप गाड़ी लेने वाले होगे, है ना। सो घर जो है उन्होंने बना दिया, है ना, बट यू आर एबल टू यूज दैट घर, है कि नहीं, तुमने तो घर बनाया नहीं वो। सो दिस इज द रीयूज हो रहा है ना। उन्होंने मेरा घर बनाया एंड यू आर एबल टू यूज दैट घर। मैं तो यूज नहीं कर सकता वो घर, क्योंकि मैं उनका बेटा नहीं हूँ, यू आर हिज सन। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम ऐसे कुछ करें, मतलब ऐसा कुछ करें ना, ऐसा ही होगा, ऐसा यूज करेंगे हम, ये कोई एक क्लास होगा, एक दूसरा क्लास बनाएंगे, उस क्लास का उसका बेटा बना देंगे, तो जो भी उसका कोड होगा, मेथड होगा, सब यहाँ पे यूज हो जाएगा। आर यू गेटिंग माय पॉइंट और नॉट? दिस इज कॉल्ड इनहेरिटेंस, ठीक है। सो वी विल सी दैट इन डिटेल, we'll do lots of programming in it. Inheritance very important, है ना। If anyone asks question regarding your OOPS object oriented programming, definitely they will ask about inheritance, है ना। So we will talk more about inheritance, what is inheritance, how it's working. Anyway, got it? Any doubt? No, very good. So this is inheritance, ठीक है। Encapsulation, we'll see that encapsulation, ठीक है। देखो ऐसे छोटे छोटे ये टॉपिक्स होंगे, ठीक है, छोटे छोटे तो नहीं हो सकते, कई बड़े बड़े टॉपिक्स होंगे, ये उप्स के सब इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है ना। एक एक करके विल सी दैट, है ना, एंड विल डील मोर इन डिटेल, क्योंकि ये सब काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। मैं इतना जोर क्यों दे रहा हूँ, क्योंकि टुडे लाइक टुमारो अनवर्ड्स ना, डोंट ट्राई टू मिस द क्लास, है ना। बहुत ही रेयर हो गया तो बात ही अलग है ना, क्योंकि अगर मिस हो जाएगा तो मिस हो जाएगा, ठीक है। ये सारी क्लासेस पिछले क्लास से कंबाइन रहेंगी, ठीक है। हर क्लास पिछले क्लास से मोटिवेटेड रहेगी, तो इफ यू मिस द क्लास यू आर नॉट एबल टू अंडरस्टैंड क्या चल रहा है क्या नहीं चल रहा है। सो ट्राई टू ना, हम लाइक रेगुलर क्लास की आर एबल टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग, व्हाट इज नॉट हैपनिंग, ठीक है। इफ यू नो, यू नो उप्स इन अ डिटेल एंड बहुत अच्छे तरीके से, very very like your priority is very high to get a job if you are in just completed your graduation last year। अगर एक साल का भी गैप है ना, तो भी बहुत easily you will get a job if you are very good in oops, ठीक है। without doing lots of ना जो प्रोजेक्ट्स है सब किए बगैर, I'm talking about as a Python developer, है ना, I'm not talking about data science AI या Django, I'm talking about a Python developer, you will get a very like chance is very high if you are very good in oops एंड सपोज यू आर वेरी गुड इन डेटा स्ट्रक्चर, बहुत अच्छी से जॉब मिल जाएगी तुम्हें। तो पढ़ो तो बताओ, समझ में आ गया उप्स होता क्या है, ठीक है। प्रोसीजरल लैंग्वेज समझ में आ गया, क्योंकि इफ एनीवन आस्क व्हाट इज व्हाई वी नीड उप्स, पता चल गया उप्स होता क्या है, ऑब्जेक्ट क्या होता है, क्लास क्या होता है। क्लास इज जस्ट यू कैन सी अ ग्रुप ऑफ अ सेम थिंग ना, as a dog is a class, a cat is a class, है ना, ठीक है। इसमें सबसे टफ है ना, जो इम्पोर्टेंट है वो है मेथड्स, ठीक है। मेथड्स को ही मेनली काम, क्लास बनाना बहुत ईजी है,
राइट अ सिंगल लाइन, अ क्लास विल, जैसे जब भी क्लास बनाना है राइट क्लास एक्स एंड क्लास विल बी लाइक सपोज यू राइट here, suppose you write, just write class x, क्लास डिफाइंड है ना, क्लास बन गई, जस्ट राइट क्लास एक्स, क्लास बन गई, ठीक है। बट स्टोरी कैसे जाएगी, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसके अंदर क्या क्या करेंगे, दैट इज रियली इंपॉर्टेंट, बट इट, सो लेट्स ट्राई टू सी दिस एग्जाम्पल, डोंट वरी। ये जो बता रहा हूँ मैं वापस से कराऊंगा, तो बहुत ज़्यादा सोचने वाली बात नहीं है, ठीक है, कि यार ये तो एक एक शुरू हो गया। जस्ट थिंक, मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ क्लास का, जस्ट I'm trying to build a class। आपको कुछ भी नहीं आता यही मान के मैं कल भी चलूंगा, ठीक है। सो डोंट जस्ट I'm कीप राइटिंग क्लास, क्लास है फोन, ठीक है। डोंट वरी दिस, ये क्या है, कुछ सोचने की जरूरत ही नहीं है आपको। So this is a class, देखो we build a class, you know, see this, I build a class, है ना, build the class, जैसे I'm writing f1, देखो मैं कुछ दिखा रहा हूँ, f1 x, see it's saying error, देखो यहाँ पे type f1 object no root x, but जबकि x है यहाँ पे, है ना, see है ना, we make a class f1 but you're not getting this, ठीक है। so whenever you build a class, ठीक है, जब भी आप क्लास बनाएंगे, कोई बात नहीं, क्लास का क्या होना चाहिए, ऑब्जेक्ट, मेथड तो ऑब्जेक्ट का होगा, है ना, तुम्हारा मेथड होगा ना, क्लास तो स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्लास का मेथड नहीं है, किसका मेथड है, ऑब्जेक्ट का मेथड है, बनाएंगे उसके अंदर पता लगा। सो फर्स्ट वी हैव टू बिल्ड ऑब्जेक्ट, सपोज आई एम मेकिंग ऑब्जेक्ट नेम के एंड आई एम सेइंग f1, सी दिस, नाउ आई एम सेइंग की डॉट एक्स, देखो इंडिया आ गया, अरे पॉइंट क्लियर और नॉट, अगेन दिस इज नॉट पॉसिबल इन लाइक यू नो लाइक जावा, ठीक है। एक्चुअली क्या है, जो वेरिएबल इनसाइड है वो इनसाइड है, उसको केवल अंदर ही रहेगा, बट इन पाइथन जो वेरिएबल अंदर है वही बाहर है ना, ठीक है ना, समझ में आ रहा है, इसमें कोई प्रॉब्लम की बात, चलो ये बात और डिस्कस करेंगे बाद में, अभी थोड़ा डाउट हो जाएगा, तो इसलिए छोड़ो। तो दिस इज द क्लास, ठीक है। लेट्स मेक अ मेथड, मान लो मेथड में मैं लिखता हूँ डिफ एनी मेथड, मान लो मेथड नेम इज meth मेथड, passing the self here, we'll discuss what is self everything ना, बस जस्ट trying to ठीक आपको दिखा पाऊँ, जस्ट प्रिंट self dot x k f1, now I'm doing k dot method, sorry, आके India, self dot x and you are able to see this India, एक सेकेंड ना गाइस, दिस, सो ये देखो यहाँ पे सपोज वी हैव अ क्लास, दिस इज f1, सो वी हैव दिस init, है ना, डोंट वरी अबाउट init, विल डिस्कस init क्या होता है, ऐसा ये बस थिंग लगेगा, बट एनीवे आई एम नॉट टेलिंग एनीथिंग, क्योंकि एक एक चीज़ में बात करूंगा पहले, जस्ट टेल यू कि ये एक क्लास है, ठीक है, ये क्लास है, इस क्लास का मेथड क्या है, दस की, मतलब ऑब्जेक्ट क्या है, की, ठीक है, और इसका मेथड है ना, तो जनरली एक क्लास के लोगों का मेथड एक जैसा ही होता है ना, मतलब मैथ के स्टूडेंट है तो मैथ ही की मेथड होगा ना उनका, है ना। अब देखो यहाँ पे मैं एक और यहाँ पर ऑब्जेक्ट बनाता हूँ, ये के एक ऑब्जेक्ट था, लेट मी मेक अनदर ऑब्जेक्ट दैट इज मे बी k1, ठीक है, व्हेन आई एम गिविंग f1, अब देखो मैं k1 भी यहाँ पे लिखूंगा, स्टिल आई एम गिवन टू गेट इंडिया, क्लियर, ठीक है, समझ में आ रही बात, नॉट आ रही बात समझ में, नहीं आ रही, मैंने क्या बोला था, एक ही क्लास के बहुत सारे मेथड ऑब्जेक्ट हो सकते हैं ना, तो यहाँ पर दो ऑब्जेक्ट बना दिया, के एंड k1, और दोनों ने मेथड को
कॉल कर लिया, कितने भी ऑब्जेक्ट बना सकते हैं, एक क्लास में कितने भी ऑब्जेक्ट हो सकते हैं, लिमिटेशन थोड़े है। बट तुम कहते कि सर एक बात बताओ, मान लो कि अगर हर ऑब्जेक्ट का नाम ही अलग होता है, जैसे मान लो मैंने कहा क्लास, और क्लास में बहुत सारे स्टूडेंट हैं, हर स्टूडेंट का नाम अलग है, सो वी कैन टेक दिस ऑल्सो ना, से दिस, लेट राइट हियर, नॉट कॉलिंग सेल्फ डॉट एक्स इंडिया, लेट्स टेक अनदर थिंग, सपोज आई एम टेकिंग ये नेम, है ना, नेम ले लेते हैं, ये नेम बनाते समय ऑब्जेक्ट, एंड से सेल्फ डॉट नेम इज इक्वल टू नेम। नाउ सी इफ यू रन इट, देखो एरर आ गया, क्योंकि आपको ऑब्जेक्ट मतलब नाम पास करना पड़ेगा। देखो मैं नाम देता हूँ, मैं भी यहाँ पे नाम दिया रोहित, बहुत ध्यान से देखना, यहाँ पे यही पूरा गेम हो जाएगा। देखो यहाँ पे F1 रोहित, ठीक है, की फिर K1 का नाम रखते हैं अपन, मान लो अजय, अजय। अब देखो K1 से मेथड कॉल किया तो, सॉरी इसमें नहीं नाम दिया गया, ठीक है, यहाँ पर करते हैं सेल्फ डॉट नेम एज वेल ना, प्रिंट, ठीक है। देखो यहाँ पे जब मैंने K1 को कॉल किया, K1 को, तो आया इंडिया और अजय, ये K1 में अजय था, है ना, बट लेट मी कॉल K ऑल्सो, K को कॉल किया तो क्या आया, रोहित आया। तो क्या हमने एक ही वेरिएबल में दो नाम स्टोर कर दिए कि नहीं स्टोर कर दिए, है? तो क्या ये एक तरह से वेरिएबल भी रीयूजेबल हो गया कि नहीं हो गया, हमने रोहित भी स्टोर कर दिया और अजय भी स्टोर कर दिया। बट क्या एक ही लोकेशन पे पॉसिबल है एक ही एड्रेस पे दो नाम स्टोर करना, अरे एक ही एड्रेस पे दो नाम याद करना पॉसिबल है क्या, हो जाएगा। मतलब तेरे घर में इतनी सी जगह है, उसमें तू ग्लास भी रखेगा, वहीं लोटा भी रख देगा, कोई एक ही चीज रख सकता है ना भाई, ये थोड़ा। अब लेकिन ये मत करना कि ग्लास के ऊपर लोटा रख दिया मैं तो बहुत तेज हूँ, ऐसा नहीं। बस समझ में आ गया, मैं कह रहा मान लो वहीं रखना है, तो वही ग्लास भी रखेगा, वहीं लोटा एक ही चीज रख सकता है ना भाई। तो या तो रोहित रखेगा, अजय रखेगा, दो चीज कैसे रख सकता है, गॉट इट। बट यहाँ पे ऐसे कर रहे हैं, इसका मतलब कुछ तो कर रहे होंगे, वो बात करूंगा जब बताऊंगा मेमोरी कैसे अलॉट होती है, अभी बात हाई बस समझ में। रीयूजेबल में बताना चाह रहा हूँ कैसे हम देखो यूज कर पा रहे हैं, हम इसी, और हम डायरेक्टली कॉल भी कर पा रहे हैं, नाम भी प्रिंट करा पा रहे हैं, है ना। यहाँ बस सिर्फ कॉल कर रहे हैं उस फंक्शन को, इस मेथड को। तो एक तरह से देखा जाए तो ये चीज तो हम बिना प्रोसीजरल में भी कर सकते थे ना, अरे प्रोसीजरल में भी तो कर सकते थे, एक फंक्शन बनाते हैं, उसमें प्रिंट नाम कहा देते, जो भी नाम डालते तो प्रिंट कर देता, ऐसा नहीं भाई, वहां पे डेटा पास करना पड़ता ना। यहाँ तो जब इस मेथड को कॉल किया तो डेटा पास ही नहीं किया ना, केवल सेल्फ को पास किया यहाँ पे, और नेम दे रहा है ना ये, तो ये है फंक्शन लेकिन मेथड है ये, क्योंकि इसमें कुछ तो है लॉजिकल, वो बात करेंगे अपन। मैं तुम्हें जहाँ कंफ्यूज कर रहा हूँ, समझो बातों को, ये क्या क्या हो सकता है यहाँ पे, एग्जैक्टली ये फंक्शन नहीं है कैसे, है ना। तो या तो कुछ तो हो रहा होगा तभी ऐसा हो पा रहा है कि नहीं, दैट्स व्हाई इट्स इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसीलिए इनकैप्सुलेशन जब बात करेंगे तो इस बारे में बात करेंगे, और ठीक है। इसका मतलब कोई तो होगा जो इस बात का ध्यान रखा होगा कि उसी सेल्फ डॉट एक्स में अजय भी आया, रमेश भी आया, दिनेश भी आया, 10,000 नाम आ गया, 10,000 अलग अलग स्टोर हो रहे हैं, और उसी वेरिएबल को हम लोग कॉल भी कर रहे हैं, और वी आर गेटिंग समथिंग, है ना। तो कुछ तो यहाँ पे अलग तरीका हो रहा होगा, कोई जादू तो हो नहीं रहा होगा, कोई तो लॉजिक होगा इसके पीछे, यहाँ पर कोई शक्तिमान तो बैठा नहीं कोई जादू कर दिया, है ना, कुछ तो लॉजिक होगा इसके पीछे, एंड वी विल सी दैट लॉजिक्स, ठीक है, कैसे सब चीज़ें हो पा रही होंगी, ठीक है। ये बात समझ में, कुछ आइडिया लगा उसके बारे में। एनीवन फ्रॉम ऑनलाइन जो कुछ डाउट है प्लीज आस्क, कोई जो कुछ डाउट है ऑनलाइन में। ठीक ठीक, इससे रिलेटेड किसी को डाउट, पहला क्वेश्चन क्या था हमारा, है प्रोसीजर लैंग्वेज और ओप्स में डिफरेंस क्या है, ठीक है। ओप्स है क्या, क्लास क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है, वेरिएबल क्या है, मेथड क्या है,
बस इतना ही समझना था आज। कोड वोड आज भूल जाओ जो कोड कराया, ठीक है, कोई मतलब नहीं है, एक एक चीज करके समझेंगे इस बात को। बट अगर तुम इतना समझ गए तो वो समझ गए, पता जरूर होना चाहिए, ठीक है। हेमंत पूछो अपना डाउट, फिर क्या अलग डाउट है। तुम्हारा भी मीटिंग है, लेकिन प्लीज डाउट के साथ ज्वाइन करें, ठीक है, मतलब मजाक करने के लिए नहीं, ठीक है। चलो, थैंक यू टू ऑल ऑफ यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।